सर अभी जस्ट वी केम टू दीघा, तो अभी हम लोग देख रहे थे कि आप पूरे उनको बता रहे थे दीघा बीच में क्या क्या नए नए चेंजेस आ रहे हैं, तो क्या नए तरीके से बनाया जा रहा है, क्या प्रोजेक्ट? एक्चुअली अभी 25 मई को साइक्लोन यस यहाँ आया था और काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ है। दीघा में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हम लोगों ने फेस किया, तो इस वजह से अब जहाँ जहाँ डिस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे हम लोग रिकन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी, रीबिल्डिंग कर रहे हैं। एंड एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि अब हमारे पास नए सिरे से शुरू करने का मौका है, तो हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे एक प्रोजेक्ट मैं आपको बताऊँ, एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट हम लोगों ने हाथ में लिया है 5 करोड़ मैंग्रोव प्लांटेशंस पूर्व मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में। So now that we are reconstructing it with ecology in mind. And mangroves act as the first line of defense against natural disasters like cyclones and tsunamis. So we are trying to have as many defense lines for us as possible. अभी शायद बहुत लोगों ने देखा होगा वीडियोस में कि वी वर वॉकिंग और पासिंग बाय द सी, अभी भी हम लोग समुद्र के सामने ही बैठे हैं, तो मुझे लगता है समुद्र की अपनी ठहराव है, अपनी अंदाज है। तो मुझे पूरे दिन आपसे बात करके लगा कि आप एक ही अंदाज में रहते हो, एक ना सॉफ्ट एंड दैट जोन में रहते हो। इज समथिंग व्हिच इज इनबॉर्न इन यू? No, I won't say that, because there have been times where I used to be pretty excited and yes sir, and I do get excited, but the expression of that excitement is not more like a teenager now. It's जो आप ठहराव की बात कर रहे हैं, so ये I think it has come with age in me. जैसे जैसे मेरा डेवलपमेंट हुआ, I was exposed to different services, different people, different locations in the country. जैसे जैसे मेरा एक्सपोजर बढ़ा वैसे वैसे आई थिंक ये ठहराव आया है। एंड येस आई एग्री कि जोन में रह के आई सी थिंग्स माई वे एंड देन आई वर्क ऑन देम, एंड आई थिंक दैट वर्क्स वेल फॉर एवरीबडी, दैट इफ़ यू स्टे इन द जोन, आपका locus of happiness, if it is centered within you, then there are very few chances that आप कोई आपको आके एकदम मूव कर पाएगा। बस एक्सटर्नल फैक्टर से आप शील्डेड रहेंगे। जैसे आपने बोला ना सर कि अपना इसके पहले भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क यू डिड, सो आई वांट टू नो लाइक बिफोर बीइंग एन ब्यूरोक्रेट व्हाट वर द थिंग्स यू डिड? I was in the private sector for an year or so in Bangalore. Then I was in the Ministry of Defence and worked as an assistant director there for 1.5 years. Then I got into the IPS in the 2017 batch and underwent the training there for 8 months, and then came to the IAS. So I have had my fair share of experiences both in the public and private sector. Apart from that, the IAS and IPS, both the services have a component of training called Bharat Darshan. Here in Bengal, we had a Bengal Darshan. So geographically also a lot of area has been covered. So essentially, उस exposure का I think ये नतीजा है। But sir, मुझे I don't know I'm right or wrong, मतलब हमने जितने वीडियो में देखे हैं, मूवीज में देखे है ना, एक स्टाइल बनाया हुआ है कि IAS IPS मतलब जोर से बोलेंगे, शोर शराबा, ये करो वो करो, कनेक्टिंग टू दैट विथ यू आर इनटू योर जोन। सो डू यू थिंक दैट इज मैंडेटरी और इट्स जस्ट फॉर द रियल लाइफ? I don't think what is portrayed about IAS and IPS in the public sphere, especially movies and serials, I don't think that is completely correct or factually correct also, because the extent of our life in the service, both personal and professional, is very broad, and there are many different aspects to it. How do we need to conduct ourselves, and how do we need to perform in various situations, in front of various elements of society.
So it's a life-changing experience being in such a job, and it provides you a lot of exposure. So I agree that there are different modes of administration. The beauty of our service is that there is no one set formula. जैसे in private sector एक code होता है, you just enter the values and the code will function. It's not like that here. Since we are dealing with public, which is a very public dealing is a very complicated and intricate matter. So इस मामले में everybody has his or her own style. So आप IPS में you have दबंग, and then आप फिर IPS में you also have officers who are not that मतलब जिनको आप दबंग की कैटेगरी में नहीं रखें, but they are equally or more efficient. So essentially from the point of view of the state, that is the government, whichever system works well. So जैसे कहते हैं कि आदमी की हाथ की पांचों उंगलियां सेम नहीं होती है, तो जिस चीज़ का जब ज़रूरत पड़ता है उस ऑफिसर को उस सिचुएशन में प्लेस किया जाता है. Not every situation can be handled with calmness and composure. Most of them can be, but not every. And कहीं आपको yes, you have to show the strict face of the state. तब आपको the चीखने चिल्लाने वाले they come very handy. So yes, officers of different genre, different mindset, different outlook are there, and all of them have their fair share of role to play in the system. जैसे जोनर की बात की है, तो मुझे लगता है ऑन द डाइवर्सिफाइड प्रोफेशन ऑफ बीइंग एन आईएएस ऑफिसर बहुत सारी चीज़ें हैंडल करना पड़ता है. आज पूरे दिन एटलीस्ट आपके साथ रह के तो मैंने देखा. तो जैसे आपको ये डिस्ट्रिक्ट है पूर्व मेदिनीपुर एंड वेस्ट बंगाल, इट्स अ कोस्टल बेल्ट मोर ओवर, तो हर डिस्ट्रिक्ट के इश्यूज तो होते ही है, बट पर्टिकुलरली उस डिस्ट्रिक्ट के और भी कुछ इश्यूज होते हैं. जस्ट लाइक कोस्टल बेल्ट में दैट अगर तूफान पूरे स्टेट में हो रहा है, बट इफ इट्स अ कोस्टल बेल्ट द इश्यूज विल बी मोर हेवी. सो जब वो चीज़ होता है तो दिमाग में पहले क्या आता है, अरे यार व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव एज अ पर्सन नॉट एज एन ऑफिसर, मतलब फिर से कुछ संभालना पड़ेगा नहीं, और यू थिंक इट इन अ डिफरेंट वे. No, I my while preparing, I had come across a talk of an IAS officer who had cleared the examination in his 4th attempt. And that talk was quite famous because he came from a very modest background. His father was a farmer, and they had a kacha house. In the rain, it used to break down, and they used to make it together. So such modest background से वो आए थे, and he cleared the examination. उनका talk हो रहा था, and that talk में just one line which he said that has stuck with me. He when his father sold off his land and sent him to Delhi to prepare with that money, and then he couldn't clear for 3 continuous years. It was very tough for a father to maintain that, because Delhi expenditure तो होगा ही, and classes होते हैं, rent होता है. So then in the 4th attempt he cleared, and the interviewer asked that person कि आपको मतलब how do you feel when you look back on that time? और उन्होंने बड़ी सहजता से कहा कि संघर्ष से कभी मतलब संघर्ष को कभी मैंने नफ़रत की नज़रों से नहीं देखा. संघर्ष तो जीवन का अनिवार्य अंग है. एंड देयर वाज अ पोएम विद दिस जो फूल कांटों में खिला था सेज पे मुरझा गया. सो व्हेन यू आर इन टफ टाइम्स, दैट इज द टाइम व्हेन यू ब्लॉसम. अब लग्जरी और इसमें आ गए, देयर आर नो चैलेंजेस फॉर यू, दैट इज द टाइम वेयर यू नो स्टैग्नेट. सो any district, any posting, any office comes with its own challenges, its own plus and minuses, and it's dependent on the officer, like how he looks at them, how he approaches them, and how he uses to give the optimum benefit, optimum development for that region. आपने लास्ट वाले सवाल में 2 चीज़ बोला है, संघर्ष के बारे में बात की है, और दूसरा बोला कि जो इंटरव्यू ने पूछा कि अपने आप को पीछे देखते हो. तो मैं दोनों को कनेक्ट करके एक सवाल पूछूंगा कि
फर्स्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा है कि आपने भी शेयर किया कि योर डैड यूज्ड टू इन अ बिजनेस जहाँ पे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट के साथ, स्पेशली आईएएस ऑफिसर्स के साथ जाना होता था, है ना? तो एक ज़माना था जब आप खुद से लड़ रहे होते जिंदगी में कुछ करने के लिए, उस टाइम पे घर जाते थे और आप एक ब्यूरोक्रेट बन गए। आप जब घर जाते हो क्या फील है जब अपने पापा को देखते हो? अलग अलग महसूस होता है? बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम देखिए बहुत मतलब वो समय जो बीता, मैं भी मतलब मुझे भी 4 साल लगे क्लियर करने में। तो ऐसा नहीं था कि भाई आई डिडंट ब्रेक डाउन। देयर वर टाइम्स व्हेन आई ब्रोक डाउन एंड आई थॉट के द गुड years of my youth are being wasted in doing the same thing again and again. But then family support was such, और वही है कि इनका द पिलर्स वर सो स्ट्रॉन्ग दैट मेरी इमारत डगमगाई नहीं, एंड आई वॉज एबल टू कंटिन्यू टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड देन फाइनली UPSC found me worthy enough to serve the people of India and gave me the service. And उसके बाद now when I go home, I make it a point के मैं बंगाल में एक ऑफिसर हूँ। यहाँ पे मैं जहाँ भी जाऊँगा अपनी गाड़ी में जाऊँगा, जहाँ भी खड़ा रहूँगा लोगों के सामने, they will look at me as the SDO or whatever post I hold. एक घर ही तो मेरी वो जगह है जहाँ पे मैं without the IAS tag के नाम से पहचाना जाऊँगा। So I make it a point to whenever I go home, I interact with all those peoples and all those guys and all those friends जिनके साथ हम लोग ने बचपन में खेला है। And one of my very good friends जिसके साथ almost daily I have a WhatsApp chat is a vegetable vendor. Really? Vegetable vendor in my area. He used to come and play with me when we were both little kids. These are the friendships which I nurture. These are the connections which will go beyond service and beyond other recognitions. So when I go at my hometown, I am the same Adit for them. My short name there was Adit, and the same Adit for them which I was 4 to 5 years ago. Notorious थे बचपन में? मम्मी तो वही कहती है, yes. People they have that opinion, but I being the first IPS from my town, second IAS from my town, so I'm very happy that I'm a matter of pride for not just my family but the whole town. And to see that appreciation in the eyes of my people when I go back, it's a different feeling altogether. सर आपको मैं जितने देर बात कर रहा हूँ ना, मेरा तो मजा आ रहा है। मतलब when I'm trying to absorb that thing, you know, the way you speak, गुस्सा आता है? हाँ, yes. I believe, देखिए आपको because emotions are something जिस पे आपका control नहीं है, they emerge within. And गुस्सा नहीं आए वैसा human being I don't think there is. आता होगा, they are controlling it. I also get angry. गुस्सा भी आता है। एंड अब उसको किस तरीके से आई प्रोजेक्ट इट आउट ऑन टू द वर्ल्ड और ऑन टू द पीपल नेक्स्ट टू मी, दैट इज़ इन माई हैंड्स। लेकिन वॉट आई फील, मुझे इस चीज़ पे हंसी आ रही है, हंसना है या गुस्सा करना है, दैट इज़ नॉट इन माई कंट्रोल। लेकिन उसको फिर उस इमोशन को कैसे मैं व्यक्त करूँगा सबके सामने, वो मेरे हाथ में है। एंड आई यूजुअली try to contain it, because whenever you are too happy or whenever you are too angry or too sad, usually this is the time to contain yourself. कुछ बोलिए मत, कुछ डिसीजन मत लीजिए, थोड़ा समय जाने दीजिए। दुखी और खुशी दोनों में कभी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जिससे आप सीखे हो? Yes. Very elated at one point of time, किसी को कुछ प्रॉमिस कर दिया, then you feel that no, this should not have been done. And this is मतलब ये this is our wisdom, ancient wisdom in the Indian society. अत्यंत खुशी और अत्यंत दुख, इसमें आप कोई डिसीजन ना लिए, इसमें आप बैठ जाइए।
जितना मुझे लगता है कि ये सब आपने तो पूरे सीख किया ये सब चीज़ें, obviously being a bureaucrat you all are masters in this thing. What about personal life? How do you go balancing that? Personal life, my connections and my this thing with family is great. एक ये होता है कि in this services, because if your family roots are there in your hometown, if they are quite deep, then naturally they cannot leave the whole setup and come and stay with you. So एक रंज रह जाता है कि भाई फैमिली पूरा टाइम, मतलब दे आर जस्ट विजिटर्स, 6 महीना भी आके रुक जाएंगे बट दे विल कम विद दिस थिंग के भाई जाने के लिए आ रहे हैं. सो दैट थिंग इज़ देयर, बट देन ऑफ कोर्स एवरी जॉब हैज़ इट्स गिव एंड टेक. सो द टाउन फ्रॉम विच आई कम फ्रॉम, मैं कोई भी नौकरी करता प्राइवेट और पब्लिक, आई वुड हैव टू मूव अराउंड, कहीं ना कहीं जाना पड़ता. सो बट येस, पर्सनल लाइफ अगर आपका अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट इट इज़ ट्रांसेंडिंग डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस कोई मायने नहीं रख रहा है, देन यू आर एज गुड एज इफ़ यू आर इन योर होम. एंड थैंकफुली मेरे लिए वैसा है. सो आई गेट ऑल द सपोर्ट विच आई यूज टू गेट अर्लियर ऑल्सो, एंड आई थिंक दैट हेल्प्स पर्सनैलिटी टू फ्लरिश. That support system is very much necessary. So sir, आप जब struggle कर रहे थे ना 4 साल के लिए, आपने बोला कि मुझे 4 साल लग गया. During that time, have you ever faced with financial instability? No, my father and my uncle, they never made it a point to let the finances come to me. After clearing and after this thing, I came to know that there are many periods of ups and downs where there are certain things which were not possible, which were done to support me. And this is how their dedication and their commitment to my success was. So I really don't believe that it's personal success या फिर मैंने मेहनत की और मैंने पाया. I believe कि बस ये सब लोगों ने मुझे, मैं इतना दूर तक देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं कई लोगों के कंधे पे खड़ा हूँ. That is the reason, because I have been helped at various instances by many people. मेरे लैंडलॉर्ड, my teachers, my friends. लैंडलॉर्ड मतलब? जहाँ पे मैं रेंट पे रहता था during my preparations. My friends, my teachers, my family members. At all point of time इन लोगों के support और इससे, and for this particular thing I am ever thankful to them. जब फ्रेंड्स की बात की उसके पहले आपने एक चीज़ बोला कि द फ्रेंड आई एम स्टिल कनेक्टेड टू इज अ वेजिटेबल वेंडर, है ना. एक सोसाइटी में कुछ बातें चलती है, हमने भी सुना है, हमने भी सुना है कि दोस्त शुड बी, you should make a friendship with somebody who achieved a lot in life. But when you said this thing, do you think that really matters? Like आपके दोस्त उच्च विचार के होना है तो ही आपका पर्सनल ग्रोथ होगा. देखिए, अगर आप पर्सनल ग्रोथ के लिए दोस्ती कर रहे हैं तो फिर वो तो ऑर्गेनिक दोस्ती तो नहीं हुई. आप किसी मोटिव लेके ही तो किसी से दोस्त बना रहे हैं. दोस्ती फॉर मी इज समथिंग विच ग्रोज ऑर्गेनिक, एंड आई एम टेलिंग यू आई कैन काउंट ट्रू फ्रेंड्स ऑन माई फिंगर्स ऑफ जस्ट वन हैंड, एंड आई एम सेटिस्फाइड विथ इट. आई एम हैप्पी दैट एटलीस्ट आई हैव देम. मेरे पास ये लोग हैं जिनको मैं ट्रू फ्रेंड्स करके बुला सकता हूँ. मैंने इनसे कोई मोटिव लेके दोस्ती नहीं की कि भाई ये मेरे इस काम आएगा इसलिए मैं इससे दोस्ती आज कर लूँ. ये ऑर्गेनिक दोस्तियाँ हैं ये, और ये दीज आर टू चेरिश. एज आई सेड, 70, 80, 60, 70 साल की ज़िंदगी, उसमें 30, 35 साल की सर्विस, ये तो इन लोगों का मुझ पे बहुत बड़ा स्टेक है. ये तो मुझे बचपन से जानते हैं और आज भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं. सो इनफैक्ट आई एम इंडेटेड टू देम. एंड हम लोग आते आते ना एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि आपने भी वही चीज़ बोला कि लाइक एज आई सेड सर, अर्बन कल्चर में इतना नहीं पता चलता है व्हाट इज द डीएम, एसडीओ एंड दिस टाइप, बट इन रूरल पीपल नो वेरी वेल. वो नाम बायोडेटा भी बता देंगे कौन एसडीओ है. आपको ये लगता है कि आप जहाँ पे भी पोस्टेड हो उस डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छा काम करने, ऐसा
अच्छा काम नॉट ओनली सेंस कि हाँ सर ये आया ये क्लियर कर दो, नॉट लाइक दैट। एक पर्सनल लोगों के दिमाग में एक परिचय बनाना या वो चीज़ कैसे मैटर करता है? बहुत मैटर करता है। एंड देखिए आपके प्रोफेशनल लाइफ में तो हेल्प करेगा ही, बिकॉज अगर आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो सरकार उसका नोटिस लेती है एंड सरकार हैज़ इट्स ओन चैनल्स टू नोट दैट। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली इट्स अ मैटर ऑफ सेटिस्फैक्शन कि what sort of satisfaction do you get when you are able to justify your presence in the service or the presence in the district. And बिल्कुल सही कहा आपने, अच्छा काम। काफ़ी ऐसे गवर्नमेंट के काम ऐसे होते हैं कि आप मे बी यू आर नॉट पोस्टेड एट दैट प्लेस फॉर सच ए लॉन्ग टाइम कि आप वो पूरा काम शुरू से लेकर कंप्लीशन तक देख पाओ। बट वॉट मैटर्स इज इंटेंट, एंड आई फर्मली बिलीव के not just the government, not just the people, the universe is focused on intent. Results are mere statistics, they are mere numbers. If I am trying for the betterment of the society where I am posted, that those vibrations will go and people will catch them, people will realize that, people will come to know and they will remember me for that. Intention, the intention with which you are here, that is the thing which matters the most. अगर आपका intention सही है, so you yourself will go in a direction where जहाँ लोगों का भला होगा. And हमारा service is the best option here, where you can touch the lives of as many as people possible, making a positive change in their lives. Intention सर, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि यार एक बार बस IAS बन तो जाऊँ, I am successful. आपको क्या लगता है कि बनने के बाद असली जिंदगी शुरू होती है? बिल्कुल। और सक्सेस का मेजर आई विल नॉट डिनाई कुछ। देयर वाज वन टाइम वेयर आई ऑल्सो हैड थॉट के द 3 letters behind my name is the measure of my success, otherwise I am a failure in life. But then with maturity I have come to understand that the measure of success is much beyond what your profession is much beyond what you are professionally. Measure of success for me today is that I justify my profession, my presence in my service, I give back to the society more than what I receive, and personal satisfaction, I lead my personal life well, I have a balanced life, I focus on my personal growth also through both professional and personal growth. And साथ में at every night when I go to sleep I have that satisfaction that yes, आज का सैलरी जो मिला वो अर्न किया है और आज मतलब I have lived well. If you have this satisfaction every night, I believe then I can call myself as a successful person in life. सक्सेस का दायरा अगर सिर्फ प्रोफेशन में माप दे तो आई थिंक इट्स क्वाइट नैरो, उसको और बड़ा करना पड़ेगा। रिलेटिव की बात की सर, बहुत जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ, सर इज एन अमेजिंग राइटर। तो ये जो गज़लें, नज़्म है ना, ये सब चीज़ें हैं, इसको फिर कैसे कोप अप कर रहा हूँ ये सब चीज़ों में। एंड उसमें सर एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ, नेचुरली एक मास ऑडियंस के दिमाग में ये चलता है, अच्छा इसने लिख लिया मतलब ये तो ब्रेकअप होगा, ये तो कुछ चल रहा है। डू यू थिंक उसकी वजह से कोई राइटर बनता है कि देयर आर आल्सो अदर फैक्टर्स? देखिए, द बेसिक थिंग बिहाइंड एनीबडी राइटिंग पोएट्री इज इमोशंस. इफ यू आर एबल टू लेबल योर इमोशंस, और आपके पास अगर वो कला है कि आप उसको शब्दों में पिरो के पेपर पे ला सकते हैं, दैट इज़ पोएट्री. अब होता ये है कि लाइक प्रीवियसली जो गज़लें लिखी जाती थी कि they used to feel certain things and that emotion was put down on paper as a शेर or as a ghazal, and I do the same thing because मेरा bread and butter तो my poetry नहीं है. So whenever I have a certain thought, I have a certain feeling, I put it down on paper. And it's a misconception sadly कि शायरी, गज़ल या नज़म ये सिर्फ मतलब शराब और टूटे हुए दिलों के लिए है.
No, ghazals and poetry has been written on change of seasons, on causing political change, you know, talking about the people, society. Love is just a section. लव वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है बिकॉज प्रेजेंट जनरेशन को बहुत अपील करता है. बट जो गज़ल का ख़जाना है उसमें हर तरीके के हीरे मोती है. हम सिर्फ एक जगह पे नज़र रखे हुए हैं. एंड आई ऑल्सो मेक इट अ पॉइंट टू राइट ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ वेन एवर एंड हाउ एवर आई फील. जैसे हमारा सर्विस हमको एक्सपोज करता है टू सी पीपल, डिप्राइव्ड पीपल, जिनको ज़रूरत है इसकी गवर्नमेंटल सपोर्ट की. सो इफ़ दैट मूव्स यू समवेयर, आपका पेन बराबर चलेगा. यू विल हैव अ शेर और गज़ल ऑन दैट. तो प्रेशर मुझे तो आपकी फ्रीक्वेंसी से पता लग जाएगा कि नथिंग डिस्टर्ब्स यू मच, बट फिर भी क्रिएटिव माइंड के लिए एक अलग माइंडसेट चाहिए होता है. तो वो प्रेशर कभी डिस्टर्ब नहीं करता? नहीं होता है. आप जो कह रहे हैं वो सही है. जैसे कभी काम होता है, कभी कुछ ये होता है, तब क्रिएटिव माइंड के लिए आई नो इट नीड्स अ रिलैक्स्ड माइंड, रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड. तो हाँ, तब थोड़ा सा फ्लो ऑफ गज़ल्स रुक जाता है. बट देन द हॉबी हैज़ बीन कल्टिवेटेड इन सच अ मैनर के आप एटलीस्ट स्ट्रेस से अपना दिमाग हटा के इसमें डालें, तो आपका उतने समय के लिए आप कहीं फोकस अपना शिफ्ट कर रहे हैं. that benefits. एंड रीडिंग एंड राइटिंग बोथ दोनों कंटिन्यू होते हैं, तो उसमें हो जाता है. स्ट्रेस बस्टर के हिसाब में भी यूज़ हो जाता है. ये वाला मौका तो मैं छोड़ नहीं सकता सर. आप सुना दो आपके लिखे हुए. मेरे अभी हाल फिलहाल में ही एक गज़ल लिखी है. इट्स वेरी फ्रेश. आपको वही सुनाता हूँ. मेरे मोबाइल में आई कीप ऑन शेयरिंग इट विद माय फैमिली मेम्बर्स. तो ज़हन से जाता आज भी तेरा ख्याल नहीं, ज़हन से जाता आज भी तेरा ख्याल नहीं, करता हूँ रोज़ ये गुनाह मगर मलाल नहीं. तेरे आशिकों को कह दे कैसे हम अपने जैसा, तेरे आशिकों को कह दे कैसे हम अपने जैसा, न चाक गिरेबान उनका आंखें भी अब तक लाल नहीं. बढ़ चढ़कर होती है बिछड़कर मर जाने की बातें, बढ़ चढ़कर होती है बिछड़कर मर जाने की बातें, शाद नज़र आता है तू बुरा अपना भी हाल नहीं. शाद मीनिंग चीयरफुल. कद्र तहजीब लहजा शर्फो अदबो अदा, कद्र तहजीब लहजा शर्फो अदबो अदा, कोशिश करो ये काम इतना भी मुहाल नहीं. आसमान तुझे पुकारे है शाहीन घरौंदे से निकल, शाहीन इज़ ईगल. आसमान तुझे पुकारे है शाहीन घरौंदे से निकल, दरख्त से बड़ा परिंदों के लिए होता कोई जाल नहीं. दरख्त इज़ अ ट्री. जिसका जवाब लेकर खड़े थे राह इश्क में, जिसका जवाब लेकर खड़े थे राह इश्क में, किया कभी किसी ने हमसे वही सवाल नहीं. हुए रुखसत महफिल से तब सुना था कहते, हुए रुखसत महफिल से तब सुना था कहते, अशफाक आदमी तो अच्छा है मगर कमाल नहीं. मैं अशफाक के नाम से लिखता हूँ, तो ये मेरे ऊपर ही मैंने तंज कसा है कि जब मैं महफिल से निकला तो मैंने ये सुना था, लोग कुछ कह रहे थे अशफाक आदमी तो अच्छा है मगर कमाल नहीं. अच्छा, तो ये अशफाक आपके पेन नेम. It's called a takhallus in Urdu poetry. So my takhallus is अशफाक. जैसे गालिब जो है, गालिब उनका नाम नहीं था, गालिब उनका पेन नेम था. उनका नाम था मिर्ज़ा असदुल्ला खां बेग.
ये राइटिंग की कीड़ा कहाँ से आया, बचपन से? नहीं ये बचपन से हम लोग मतलब घर में पापा एंड चाचा एंड ऑल दे आर फैंस ऑफ उर्दू पोइट्री, सो सुनते थे. लेटर फिर व्हेन आई वाज इन द कॉलेज, तब मैंने आई ट्राइड माई हैंड एंड आई फाउंड दैट आई कैन राइट. फ्रॉम देन सिंस देन आई एम कंटिन्यूइंग. Do you think ये गजलें भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा that soft and वो वाले भी लेके आए? आई थिंक यस, कुछ कंट्रीब्यूशन तो है ज़रूर. पर्सनल लेवल पे बिल्कुल. मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, मन कर रहा है और भी करते हो. Obviously पूरे दिन आपका मेरे साथ रहा, it's not possible. Thank you so much sir. थैंक यू वेरी मच. This time and opportunity. एक self-obsessed question. What was your feeling during the podcast? No, it was wonderful. I found it a great platform to share our side of the story, what we do the whole day, how do we function, and your questions were basically on how do we balance professional and personal life and how do we go ahead with it. So I hope the youth of India, they look up to the IAS and IPS officers. Many of them want to become them, so they have a better insight into the job into which they are aspiring, and what it demands and how it should be, and आपका mindset क्या होना चाहिए. As I said, the best thing to have is a good intention, because intention matters. बाकी सब statistics हैं.